सो प्लीज़ आप मुझे बता दें, आप लोग सुन सकते हैं? इज़ एवरीथिंग फाइन? सो शुड आई स्टार्ट? वालेकुम अस्सलाम. Okay. Thank you, Misal. Thank you, Mareem. Okay, Sameem. Let's talk about. Have you been through your test today? Good, good. Perfect. So here we are going to discuss. Thank you, Nurul Hada. Today we are going to discuss something which is a bit important. Good. Thank you, Miss Ann. And this is the last topic of environment and health which we are going to see today. And it is again interesting because आज जो हम बात करने वाले हैं उसके अंदर जैसे कि आप देख रहे होंगे I have written lecture number 6. That is based on light, smog, and 10 essential public health services. Today, I need to sum up the whole concept of environment and health with the important thing of services, like what we can do and how the governments and the policy makers can help us out because of all these disasters. अभी तक आपने तमाम तर वो चीज़ें देखी हैं जो हम अपने अराउंड सराउंड देखते हैं, उसमें से लाइट और स्मॉग भी दो वो टॉपिक्स हैं जो अभी हमारे इस चैप्टर से होते हैं और उनको हमने एक छोटा सा रिव्यू देना है. But we will discuss some more solutions, the way we forward. हम कैसे इस चीज़ के ऊपर try on कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को differentiate कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को जो है वो modify कर सकते हैं for making our best. Perfect. So let's start with today's topic. I hope everyone is there. So this is almost time to start the lecture. Right. This is my little bit introduction, which you have seen. Light, smog, and 10 essential public health services, which we are going to see today. Why it is important to have light? Everybody knows that we need light for so many purposes. And first of all, we need light to that carries the required energy to sustain the life on Earth. Photosynthesis. You must have heard the phenomena जिसके अंदर आपको पता है कि लाइट को इस्तेमाल करके प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड बनाते हैं. विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग. एग्जैक्टली हम देख नहीं सकते. हमें देखने के लिए चीज़ों को हमें लाइट की हमारे रेटिना को प्रॉपर जरूरत होती है. जब तक हमें लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आता वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ अस. तो इसी तरह लाइट कैरीज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यूजिंग विद व्हिच वी कैन परसीव थिंग्स. परफेक्ट. So the important thing is if you're talking about light, तो light के अंदर good lighting, bad lighting, poor lighting, अभी हम ये थोड़े से concept और देखेंगे. तो हमने देखा कि अगर आप लाइटिंग से लाइटिंग को अच्छा बनाना चाहते हैं तो लाइटिंग की खुद कोई अपनी जो है वो रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. उसके अंदर अपने अंदर कुछ खुसूसियात होनी चाहिए. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ हमने कल हाउसिंग की भी बात की थी. अगर हाउसिंग की बात करें, आप ऑफिस कंस्ट्रक्शन की बात करें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो अगर वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, प्रॉपर जो वे इट इज नॉट टूवर्ड्स द ईस्ट साइड और आप उसके अंदर विंडोज भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सो देयर विल बी नो इनलेट फॉर द लाइट टू कम इनसाइड. Right, so light is essential for the life, as you have known with the water, air, and other things. So light is again an important thing, and sunlight is obviously very important for the human being as well as for animals and plants. सभी की ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है लाइट का. अब लाइट के अंदर खुद कौन सी जो है वो क्वालिटीज होना चाहिए. There should be some sufficiency there, distribution, absence of glare should be there. Right, so absence of sharp shadows over there, color of light is important, right? So the brighter colors, the brighter light giving the full illuminated effect. जो gloomy lights होते हैं वो आपको dim effects देते हैं. Steadiness and surroundings obviously does matter कि color का इस्तेमाल भी कैसा है जिससे इसने reflect होके आपकी आंखों तक आना है.
तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. इफ़ यू आर सिटिंग इन अ रूम विच इज़ डार्कली पेंट, जैसे डार्क उसकी वॉल्स हैं, एंड द लाइट इज गोइंग टू हैव रिफ्लेक्ट फ्रॉम दैट सरफेसेस, तो उसका जो इम्पैक्ट आपके माइंड में बनेगा वो थोड़ा डल ही होगा, डिप्रेसिव ही होगा. ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई द लाइटर कलर हैज बीन यूज्ड इन द वॉल्स एंड ऑन द रूफ स्पेशली. ठीक है, ताकि जब वो आपकी विजन से टकराती है तो दैट गिव्स यू अ गुड ब्राइटर इफेक्ट. So let's move on the other thing, that is the measurement of the light. हम लाइट को मेजर भी करते हैं कि लाइट की कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी इंटेंसिटी से, कितनी इल्यूमिनेंस से जो है वो लाइट आपके सामने मौजूद है. ठीक है. इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स, इल्यूमिनेशन और इल्यूमिनेंस, ये तमाम चीज़ें, ब्राइटनेस, इल्यूमिनेंस जिसे कहा जाता है, ये सब क्वालिटीज ऑफ लाइट है. किस तरीके से आपके पास आ रही है, एंड हाउ डू वी कैन मेजर इट. तो आपने देखा कि 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट इज इक्वल टू फुट कैंडल्स. तो यूजुअली जो लाइट की इंटेंसिटीज है वो फुट कैंडल्स में मेजर की जा रही है. सजेशंस आपको यहाँ पे देते हैं कि नेचुरल लाइटिंग अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी डे लाइट की इल्यूमिनेशन से आप मदद लेना चाहते हैं और अपनी जगह को, अपने ऑफिस को, अपने हाउस को, अपने लिविंग रूम को या किसी भी जगह को इल्यूमिनेट करना चाहते हैं, तो आप उसकी ओरिएंटेशन ऐसी रखें, उसकी ओरिएंटेशन ऐसी रखें कि आपको लाइट जो है वो उसकी विंडोज को स्ट्राइक करे या वहाँ पे ग्लास का इस्तेमाल करें. जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो दे हैव यूज्ड द नेचुरल लाइट for improving their illumination inside the room. ठीक है. तो रिमूवल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन इज इम्पोर्टेंट. अगर आपने वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस लगाई हुई हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे इल्यूमिनेशन नहीं होगी. विंडोज obviously is a good thing to have there. Interior of the room is very important. You need to maintain the interior of room as well, क्योंकि हो ये रहा होता है कि अगर आपका इंटीरियर बहुत ज़्यादा हैवी है, डार्क कलर आपने यूज़ किए हैं और बहुत ज़्यादा हैवीली उसको जो है वो डेकोरेटेड है, तो वहाँ पे भी एक सफोकेशन की फीलिंग डेवलप हो जाती है. एंड ऑब्वियसली लाइटिंग कैन नॉट चेंज इट वेल. ओके. सो मेजरमेंट ऑफ डे लाइट को हम डे लाइट फैक्टर से भी मेजर करते हैं कि कितना है. ठीक है. इंस्टेंस इल्यूमिनेशन इन द डोर दैट इज डिवाइडेड बाय साइमल्टेनियस इल्यूमिनेशन आउटसाइड द डोर, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से. ये बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट एटलीस्ट नो द नेम ऑफ दीज थिंग्स कि डे लाइट फैक्टर भी कोई चीज होती है जिससे आप डे लाइट को मेजर करते हैं. ठीक है. इनसाइड द रूम और आउटसाइड द रूम इल्यूमिनेशन को आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ है, तो दिस इज ओनली द डे लाइट फैक्टर. इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ आपसे नहीं पूछी जाएगी, बट स्टिल एटलीस्ट यू शुड नो द टर्मिनोलॉजी. आर्टिफिशियल लाइटिंग इज व्हाट द सिस्टम और आर्टिफिशियल लाइटिंग आपके पास मौजूद है. एक तो नेचुरल लाइटिंग में आपने देखा कि आपके पास सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट थिंग सन है. रात के वक्त जो है वो मून होता है. ठीक है. स्टार्स होते हैं, बट ऑब्वियसली उनकी लाइट इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती. दैट्स व्हाई, बट द सन इज द मेजर सोर्स ऑफ डायरेक्ट लाइट. ठीक है ना. अगर हम आर्टिफिशियल लाइटिंग की बात करें तो डायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब सारी टर्मिनोलॉजीज हैं. इसकी डेप्थ में जाने की यू आर नॉट सपोज टू गो टू द डिटेल. बस यही होता है कि अगर आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट लाइट आपके सामने लटकी हुई है तो वो डायरेक्ट लाइट है. अगर वो कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है तो सेमी डायरेक्ट है. ठीक है ना. और अगर वो कहीं छुपी हुई है और उसकी लाइट थोड़ा सा ग्लेयर बाहर आ रहा है, सो दैट इज इनडायरेक्ट. ये आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन के हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं. फिलामेंट लैंप्स भी मौजूद होते हैं. इसके अलावा फ्लोरेसेंट लैंप्स भी मौजूद हैं. यू मस्ट हैव बीन थ्रू ऑल दीस थिंग्स. अभी आप देखेंगे क्योंकि क्यों हमें लाइट को पढ़ना जरूरी है. कोई आइडिया है आप लोगों को क्यों हम लाइट को इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स में पढ़ रहे हैं? व्हाई? We need to study light as per your public health is concerned. Any idea? Because poor lighting has health hazards. क्योंकि अभी वो क्या होते हैं वो हम सारे अपने इस डिस्कशन में जो है वो देखें.
हाँ, परसेप्शन ऑफ लाइट भी आप कह सकते हैं, और इम्प्रूव प्रॉपर लाइट इफेक्ट्स होते हैं, एंड टू मेनी अदर इश्यूज। यस, ऑब्वियसली हम देखेंगे भी उनको वन बाय वन कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एंड हाउ डू यू लाइक उनसे आप टैकल कैसे करें, ठीक है ना। तो ये आपने देखा, जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ है कि ये 0.1 लक्स जो है वो फुल मून लाइट की रेंज होती है, जबकि 1 लाख लक्स जो है वो ब्राइट सनशाइन के लिए एक पूरी एक रेंज मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से हम हमारी आईज जो है वो एक छोटी सी लाइट से लेके बड़ी सी लाइट तक को, यानी कि हैवी लोड्स ऑफ लाइट को जो है वो अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो द रिकमेंडेड लाइट्स भी होती हैं कि कुछ ये चीज़ें आपकी जो है वो मैंने बुक से ही पिकअप किया है पूरा चार्ट, और उसके अंदर जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि कैजुअल रीडिंग के लिए हाउ मेनी लक्स इज रिक्वायर्ड, या इल्यूमिनेशन कितनी रिक्वायर्ड है, जनरल ऑफिस वर्क के लिए कितना रिक्वायर्ड है, फाइन असेंबली के लिए कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। वेरी सिवियर टास्क जो करते हैं वो, और वॉच मेकिंग को इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ क्यों दी जा रही है, इसलिए कि वो बड़ी माइन्यूट डिटेलिंग का काम है, और उसमें आपको काफी तेज लाइट की जरूरत होती है टू सी द माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द वॉच मशीनरी। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नाउ सी दिस पिक्चर, इसमें आप देख रहे हैं कि लाइट एक ये जो है वो आपकी आंखों के ऊपर पड़ती है, और उसके कुछ विजुअल परसेप्शंस बनने शुरू होते हैं, ठीक है। विजुअल परसेप्शंस जब बन रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे बायोलॉजिकल कुछ एक फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, और एक विजुअल परसेप्शन। अब लाइट ने दो काम तो करती है कि लाइट एक तो आपका विजुअल परसेप्शन जो है आपको नजर आना शुरू होता है, इसके अलावा आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल रिदम सेट करने के लिए भी ये लाइट बहुत जरूरी है। जैसे कहा यह जाता है कि आपकी जो बॉडी है दैट वर्क्स बेस्ट फ्रॉम 8 to 8। 8 to 8 कौन सा, 8 AM टिल 8 PM, ठीक है। 8 to 8 जो इनर क्लॉक होती है, जैसे आप स्लीप ब्रेक साइकिल भी कहते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी तमाम तर चीजें अल्लाह ताला ने जो है वो उसी तरीके से डेवलप किए हैं कि आप जो हैं उस स्लीप वेक साइकिल के दौरान चलते हैं तो आपकी बॉडी वर्क्स बेस्ट, ठीक है। और सुबह जो होता है कि आपकी बॉडी के जितने भी कंस्ट्रक्टिव हार्मोन, जितने भी एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं, उन सभी के लिए जो है वो बहुत बड़ा क्लासिक टाइम होता है फ्रॉम 8 to 8। और आप कहा जाता है कि उसी वक्त जब इनका सर्ज आता है तो आपकी बॉडी जो होती है फुल बूस्ट रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठें, अर्ली राइज एंड अर्ली to bed जो है that keeps you healthy. Obviously there is some biological reasons behind all these cycles. और थेरेपेटिक मेजर में भी आपने देखा कि अगर हम देखें, आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे बॉर्न होते हैं एंड इफ दे आर द प्री मेच्योर वंस, और उनके अंदर हाइपर बिलिरुबिnemia यानी कि बिलिरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिल रही है उनके ब्लड में, दे आर फेसिंग जॉन्डिस, तो दे द डॉक्टर्स कीप देम इनसाइड द लाइट, इनसाइड द ब्लू लाइट्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि उनके कॉर्ड्स के ऊपर वो लाइट्स लगे हुए होते हैं, तो उनके हाइपर बिलिरुबिnemia को ट्रीट करने के लिए भी लाइट इस्तेमाल होती है। ये मैंने आपको वैसे ही बताया कि एक थेरेपेटिक मेजर के तौर पे भी लाइट यहाँ पे इस्तेमाल होती है। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स अगर आप उठा के देखते हैं तो आपको फिजिकल एक्टिविटी, जैसे अभी हमने बात की है, उसी को हमने थोड़ा सा इन्हांस किया है, एलैबोरेट किया है कि आपकी मेलानिन सिंथेसिस, एक्टिवेशन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी, और एड्रेनोकॉर्टिकल सिक्रेशन एंड फूड कंजम्पशन, ये वही बात जो अभी हमने आपसे डिस्कस की है। ये तमाम बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो लाइट की वजह से आपकी बॉडी में हो रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ, फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, फॉर द नॉर्मल development of your immune system. This is again very important. That sleep wake cycle, बिलीव कीजिए कि स्लीप वेक साइकिल जो है, if it is good inside your body, it is the treatment of so many diseases, so many lifestyle diseases, you can say, राइट। सो ये हमने थोड़ा सा डिटेल में देख लिया। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द साइंस ऑफ पुअर लाइटिंग, जिसके ऊपर अभी हमने बात की थी। अब अच्छी लाइट नहीं है, आप पढ़ रहे हैं एक रूम के अंदर और बहुत सारी देर आप रीडिंग करने के बाद आपकी जो आंखें हैं वो दर्द करना शुरू हो गई, यू हैव इरिटेशन, ब्लड विजन, ये सब चीज़ें। why it is happening? Because you might not having the proper lighting in that space. तो इसीलिए डिज़ाइन करते हुए जब हमने स्कूल हेल्थ भी पढ़ा
तो हमने स्कूल हेल्थ में भी ये जानने की कोशिश की थी whenever we are designing a room for the students and we are constructing an school, तो हम वहाँ पे जो है वो लाइटिंग का बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। 40% of the area of the that room has been used in terms of windows and doors, ताकि वहाँ पे लाइट की जो एक्सेस है वो अच्छी है। And now there are so many other signs: dry, burning eyes, headache, depression due to blue light. It's common, and computer vision syndrome. Any idea about this computer vision syndrome? Yes, computer vision syndrome. क्या होता है? आज आप लोगों का probably last day of working है, and then you are excessive use of computer. Yes, because it is, yes, exactly. यस अली, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की बात करते हैं तो उसके भी इनिशियल पॉइंट्स यही हो रहे होते हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम द आई स्ट्रेन्स, इरिटेशन, ब्लड विजन, ड्राई बर्निंग आईज, जिसे ड्राई आई सिंड्रोम भी कहते हैं, हेडेक, ये सब चीज़ें उसके साथ साथ हो रही होती हैं। एंड फाइनली वन डेवलप कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जैसे लैपटॉप यूज, मोबाइल यूज। सो हमें करना वही होता है कि वी नीड टू लिमिट आवर यूजेज, सही। और इसके और भी बहुत से तरीके हैं कि एक तो अभी हम आगे भी देखेंगे कि कैसे आपकी प्लेसमेंट्स कैसी होनी चाहिए। द प्लेस वेयर यू आर वर्किंग दैट शुड बी परफेक्ट, दैट उसके जो अर्गोनॉमिक्स हैं वो अच्छे से डेवलप हुए होने चाहिए, बिकॉज अर्गोनॉमिक्स क्या होते हैं? फिटिंग द जॉब फॉर द वर्कर्स, ठीक है, कि लोगों के लिए, जो एम्प्लॉयज आपके पास हैं और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के लिए उस वर्किंग एनवायरनमेंट को अप्रिशिएबल बनाना, उसके लिए एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेबल बनाना, दिस इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क प्लेस। तो ये आप देखें कि प्रॉपर लाइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट ग्लेयर जो है वो आपकी आंखों के ऊपर प्रॉब्लम डाल सकती है। अब करेक्ट पोजीशनिंग क्या है? करेक्ट पोजीशनिंग में आप देख लें इस पिक्चर के अंदर, जिसमें आपने देखा है कि सीट जो है वो रिलैक्स पीछे की तरफ पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, आपके लंबर सपोर्ट पे होना चाहिए, ठीक है। आपके आर्म्स जो है वो हॉरिजॉन्टल आपके की पैड के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो जो स्क्रीन है वो स्लंट होनी चाहिए, थोड़ी सी स्लंट बैकवर्ड होनी चाहिए, ठीक। फुट सपोर्ट के लिए भी कहा जाता है कि दैट शुड बी देयर, गुड सपोर्ट ओवर देयर। आपकी लेग्स, आपकी सीट की एडजस्टेबिलिटी, हर चीज जो है वो प्रॉपर स्पोजिंग ऑफ द स्पेसिंग ऑफ द डेस्क, यानी कि उसकी हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम चीजें मिलके आपकी करेक्ट पोजीशनिंग बनाती हैं। इल्यूमिनेशन के कुछ पुअर लाइटिंग है एक कमरे में, उसमें कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि एक लाइट अच्छी नहीं है, इनसफिशिएंट है, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट, लाइट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इम्प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट है, ग्लेयर आया हुआ है, फ्लिकर है, ब्लाइंड स्पॉट है, थर्मल हीटिंग, ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हम एक कंट्रीब्यूट करते हैं कि प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। अब लाइटिंग अच्छी नहीं है तो बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स जो आपको नजर आते हैं, हेडेक, माइग्रेन, फोटोफोबिया, आई पेन, ब्लरी आईज, एंजाइटी, स्लीप ट्रबल्स, ठीक है, नोजिया, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये सब चीजें स्ट्रेस का ही जो है वो आखिर में जाके सबब बनती है। सो ओवरऑल अगर आप वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस पे जो हैजर्ड्स आपको हो सकते हैं, ये जो तस्वीर है आप उसको नोटिस करेंगे तो वो पर्सन इज सिटिंग विद द पोस्चर, विद नॉट द गुड पोस्चर, ठीक है ना। वो इस तरीके से झुक के आगे बैठे हुए हैं तो उसके पोस्चर में डिफरेंस आ सकता है, हेडेक, आई स्ट्रेन्स, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जाहिर सी बात है, वंस समवन इज नॉट फीलिंग गुड, समवन इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन सिटिंग एंड वर्किंग, तो आपको प्रोडक्टिविटी के लेवल्स इतने तो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। सो काफी दफा कहा जाता है कि पुअर लाइटिंग इज सेफ्टी एंड हेल्थ हैजर्ड, ठीक है ना। पुअर लाइटिंग जो है वो सेफ्टी और हेल्थ के लिए जो है वो हैजर्ड। अब सोल्यूशन भी मौजूद है कुछ,
ये आपको दिखाया है जैसे ergonomics जो होते हैं वर्क प्लेस के, वो क्या है कि मॉनिटरिंग प्लेस में जो है वो स्टैंड होनी चाहिए ताकि विजन जो है वो आई के ऊपर नॉर्मल करे, ठीक है। इसके अलावा लैम्प्स आप यूज कर सकते हैं, डेस्क को रीअरेंज कर सकते हैं, लाइटिंग जो है वो इन केस ऑफ ग्लेयर आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चमक वाली लाइट्स उनको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज द कलर ऑफ द रूम फॉर द पुअर लाइटिंग एंड मेक विंडोज बिगर टू गेट व्हाट द नेचुरल लाइट, ठीक है। उससे आपका रूम जो है वो ज़्यादा लगेगा। एनी आइडिया व्हाट हैज़ बीन शोन इन द पिक्चर? ये मैंने आपकी इंटरेस्ट के लिए डाला है और आप लोगों को जान के भी अच्छा लगेगा और आपने यू हैव मस्ट हैव बीन थ्रू विद दीस थिंग्स। कुछ पता है क्या है ये? व्हाट्स दैट ब्लू ब्लू इन द पिक्चर? यस, रेज ऑफ लाइट है और ये ब्लू लाइट है जो आपकी मोबाइल फोन और आपकी स्क्रीन से एमिट आउट हो रही है, ठीक है। तो ये ब्लू लाइट है। यस, causing eye strains and eyesight. यस, यस, यस। तो अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ ब्लू लाइट एक्चुअली होता क्या है। इट्स हैज वेरी मच हैजर्डस इफेक्ट्स। आप में से कितने लोग जो हैं वो रात को सोते हुए अपने बेड टाइम पे जाते हुए जो है वो मोबाइल जरूर देखते हैं? आई थिंक सभी देखते हैं। ब्लू लाइट फिल्टर के साथ, बट स्टिल यू आर वॉचिंग एंड एवरीवन इज वॉचिंग, सभी कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट के लिए डाला है कि अगर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें और अगर हम थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करें तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मेरी सोच थी कि आजकल की जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गई है और जब से ये लॉकडाउन की सिचुएशन है तब से तो सब लोग जो है वो स्क्रीन के साथ जो है ना यू कैन से कि वो चिपक गए हैं। दे हैव ऑल वी हैव बीन स्टक विद दीज, क्योंकि यही हमें जो सोशल मीडिया और ये जो सारा कुछ है ये आपको पूरी दुनिया की सैर कराता रहता है। सो वी लाइक टू स्टिक विद इट। वेल, हम देखते हैं कि कैसी ये एक्सपोजर आपकी ये जो ब्लू लाइट इफेक्ट है आपकी बॉडी को आपके ब्रेन को कैसे खराब करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रप्शन ऑफ योर स्लीप शेड्यूल, ठीक है सबसे पहले बिल्कुल। yes, this is, but still, रिजल्ट्स आते हैं। आप देखेंगे अभी आगे आई लिस्ट मैं आपको बताऊंगी कि ब्लू लाइट ऑब्वियसली होती है लेकिन सभी लोग उसके फिल्टर के साथ ही यूज करते हैं। बट अगेन दीज रेडिएशंस हैव देयर बैड इफेक्ट ऑन योर आईज, नॉट ओनली ऑन योर आईज एज वेल एज ऑन योर होल बॉडी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कौन सी चीज है जिसके ऊपर ये इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी, इम्पेयरमेंट ऑफ द मेमोरी। सो यू, आपको क्या होगा, दैट विल बी हार्ड टू लर्न, ठीक है। और फिर होता क्या है कि जैसे जैसे आपको इनफ स्लीप नहीं आती आपकी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूरोटॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी टॉक्सिफाई हो जाती है, ठीक है। दैट ट्रिगर आउट टू द डिप्रेशन एज वेल। इसके अलावा जब आप स्लीप डिस्टर्बेंसेस में चले जाते हैं आप मेलेटोनिन और अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। ना सिर्फ ये कि लाइट आपकी आंखों को खराब कर रही है बट यू आर डिस्टर्बिंग योर नेचुरल रिदम ऑफ द बॉडी। So you are going at the risk of making your body stressful and that's why you are at the risk of obesity, ठीक है। And there is also a connection of light exposure at night and disturbed sleep when it comes with, and there is increased risk of breast cancer and prostate cancers as well, ठीक है। रिसर्चर्स ने उन्होंने देखा है कि वो कैटरेक्ट के ऊपर भी बात कर रहे हैं।
yes, 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 you're right, but moreover we are, जब भी हम लोग फ्री होते हैं हमारा एक ही काम होता है कि हम उठाते हैं मोबाइल और कुछ ना कुछ देखना शुरू करते हैं। आजकल की बात इस तो स्लाइटली डिफरेंट कि आपको मोबाइल्स पे देखना पड़ रहा है और आपको मोबाइल्स पे रहना पड़ रहा है, बट स्टिल फॉर एग्जांपल इफ समवन इज वर्किंग 8 to 8 या 9 to 5 इन द ऑफिसेस, तो आप उनके बारे में भी सोचें, थोड़ा सा इसको ग्लोबल सोचिए, थोड़ा सा सबके पर्सपेक्टिव पे सोचिए कि वो स्क्रीन के साथ उनको चिपके रहना है, इसकी स्क्रीन के साथ उन्होंने काम भी करना है, तो देयर इज अ कांस्टेंट हैजर्ड फॉर एवरीवन। ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। सो नाउ कम अप टू द नेक्स्ट थिंग। ब्लू लाइट के इफेक्ट्स आपने देख लिए आपकी बॉडी पे, आई फटीग, हाई हेडेक, मिग्रेन, डिसरप्शन ऑफ स्लीप, डैमेज टू रेटिना, ये कुछ कम नहीं हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है। सो वी हैव बीन थ्रू विद द लाइट एंड द ब्लू लाइट। और ब्लू लाइट का जो फैक्टर मैंने इसमें ऐड किया था वो आपकी इंटरेस्ट के लिए किया था, वो आपकी डे टू डे जो है वो आपकी मोटिवेशन के लिए किया था। You should be aware of these things and you should stop using मतलब उसके एक्सेस को थोड़ा सा कंट्रोल करें। हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल ना करें, आप करें, लेकिन ये है कि उसको अपना थोड़ा सा मॉडिफाई करें इस वक्त के साथ। ठीक। सो व्हाट इज शोन इन द पिक्चर, there are two people, they're talking about something that is that fog, or that is a foggy day, or that's a smoggy day, or something like that. तो ये कुछ इस तरह की चीजें हमें पिछले चंद सालों में देखने को मिली हैं। यूजुअली हम फॉग को एंजॉय किया करते थे कि फॉग आ गई है तो हमें वो सर्दी का एलिमेंट जो है वो समझ आना शुरू हो जाता था, बट नाउ अ डेज इट्स बीन अगेन हैजर्डस। यस, दैट इज अ स्मॉग। स्मॉग इज एक्चुअली व्हाट, एक इंटेंस फॉर्म है एयर पोल्यूशन की, और ये टर्म क्वाइंड हुई है अर्ली 20th सेंचुरी, जिसमें आपको ये पता चल रहा होता है ये दो वर्ड्स की कंट्रैक्शन है। ठीक है, कंट्रैक्शन कहते हैं एक छोटा सा टुकड़ा एक वर्ड का ले लिया, दूसरे वर्ड का भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, प्रीफिक्स और सफिक्सेस को यूज करके आपने एक नया वर्ड जो है वो कॉइन अप कर, दैट इज कॉल्ड एज कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड। तो यहाँ पे कंट्रैक्शन जो उन्होंने इस्तेमाल की है उसको कहते हैं स्मॉग, which is the combination of smoke and fog. होता क्यों है? वही बात जो हमने एयर पोल्यूशन के साथ भी डिस्कस की थी, और उसमें हैजर्डस होते हैं, ठीक है ना, और एयर पोल्यूशन जो कि पर्टिकुलरली इमिट आउट हो रहे होते हैं व्हीकल से, जो इमिशंस आपकी इंडस्ट्रीज कर रही हैं वो सब मिल मिला के कहीं ना कहीं स्मॉग को डेवलप करते हैं, स्मॉग बनना शुरू। And smog contains a pollutant called ozone, ठीक है, जो elevated ozone levels आपको मिलने शुरू हो जाते हैं तो आपके variety of negative lung effects जो है वो develop करना शुरू हो जाते हैं। What is the smog made up of? Usually वही air pollutants जितने भी मौजूद हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, सल्फर ऑक्साइड्स है, ओजोन है, स्मोक है, अदर पार्टिकुलेट्स जो हवा में मौजूद होते हैं और जो किसी भी पोल्यूशन की निशानदेही करते हैं। Man-made smog is also derived from like हमने कैसे बनाई है smog? हमने बहुत सारा कोल कंबस्शन इमिशंस लिए हैं, व्हीकलर इमिशंस लिए हैं, इंडस्ट्रियल इमिशंस लिए हैं, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चरल फायर्स हैं, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ दीज इमिशंस जो हैं उनके साथ जब रिएक्शन बनती है तो वहाँ पे ओजोन लेयर दोबारा से बननी शुरू हो जाती है। ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो है जो डायरेक्ट इमिशंस हो, डायरेक्ट इमिशंस आप कहीं ना कहीं आप देखिए कि जैसे शिप से आ रहा है, कार से आ रहा है, हाउसेस से भी आ सकता है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज कैरिंग आउट ऑल दीस थिंग्स, फिर ये जेट प्लेन्स हैं, ठीक है, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे उनकी कॉम्बिनेशन बनती है हवा में मौजूद पहले से चीजों के साथ, तो आप वहाँ देखते हैं कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो भी डेवलप हुए हैं। This is again picture and the illustration of that thing. Okay. यहाँ पे आप मजीद देख सकते हैं कि किस तरीके से मोनोऑक्साइड्स जो है वो बन रहे हैं, और मोनोऑक्साइड्स जो है वो हमेशा हैजर्डस होते हैं बॉडी के लिए। सो आपने देख लिया कि स्मॉग जिस तरह भी बन गई अब वो हवा में आ चुकी है।
अब उसकी जो प्रॉब्लम ये है कि अब उसने डेवलप कर लिया और अपने आप को बहुत ज़्यादा हैवी फील किया। अब जब वो हमने इनहेल कर, तो कुछ लो लेवल्स पे कुछ रेस्पिरेटरी हेल्थ इफेक्ट्स आए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी लॉन्ग एक्सपोजर जाता है, जैसे जैसे मजीद आपका एक्सपोजर बढ़ता जाता है, तो मसले मसाइल भी बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, सो जैसे जैसे हवा में कहते हैं ना कि स्मोक का तनासुब बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है वो आपके ऊपर जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। दैट स्टार्ट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ आईज, इरिटेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन से, क्योंकि आईज और थ्रोट में आपको इरिटेशन से बात शुरू होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तक चली जाएगी, कॉफिंग, एंड देन एजमा टाइप ऑफ थिंग्स या एजमा टाइप ऑफ अटैक्स समवन कैन हैव। ठीक है, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स तो ऑब्वियसली बन ही रहे होंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो पार्टिकुलेट्स हैं वो इनहेल करते हैं और वो हमारे लंग्स में डायरेक्टली जा रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? अभी हमने देखा कि आई के ऊपर हो सकते हैं, इरिटेशन से शुरू होकर एजमा, एम्फिसेमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लंग इन्फेक्शन, आई इरिटेशन, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू कोल्ड। वही बात है कि इम्यूनिटी आपकी डेवलप जो हो रही होती है उसको एक बड़ा धचका लगता है, और ये तमाम वजूहत की वजह से आपकी बॉडी इम्यूनिटी जो है उसकी थोड़ी शेकन अप हो जाती है। ओजोन इज स्मॉग, ऑलवेज हम ये देखते हैं ये जो है वो प्लांट की ग्रोथ भी इनहिबिट करता है, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो इसके इम्पैक्ट है वो क्रॉप्स और फॉरेस्ट के ऊपर भी जो है वो कुछ खास अच्छे नहीं पड़ रहे होते, वहाँ भी उसके मिसाइल। वहाँ बचा कैसे सकते हैं, कर क्या सकते हैं, हो गई एक चीज, ठीक है, हम कर ये सकते हैं कि हम ड्राइवलेस एक बड़ा अच्छा फिनोमेना है, उसको आप कैसे कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं। अगर कोई नियर बाय आपने जाना है तो आप वॉक कर सकते हैं, आप बाइसाइकिल यूज कर सकते हैं। कार पूल एक बड़ी अच्छी टर्म है कि अगर 4-5 लोगों ने इकट्ठे एक ही जगह जाना है, तो डिस्पाइट वो 5 गाड़ियां इकट्ठी अलग 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 जा रही हैं, सो दे कैन कंबाइन, दे कैन यूज दैट कार पूल सिस्टम। ठीक है, and use public transportation whenever possible. This is based around awareness, and बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी मोरल्स को भी चेंज कर रही हैं, अपने लाइफस्टाइल्स को भी चेंज कर रही हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि उनकी इन्वायरमेंट जो है फ्यूचर के लिए, उनके खुद के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सिक्योर कर सकें। हम और क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों के बाकायदा चेकअप्स, रेगुलर ट्यून अप्स, ऑयल चेंजिंग ऑन द शेड्यूल टाइम, इंफ्लेटिंग ऑफ द टायर एट द प्रॉपर लेवल, इम्प्रूविंग गैस माइलेजेस। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपकी जो अगर व्हीकल इम्प्रूव्ड है, वो परफेक्ट है, वो उतनी ज़्यादा, आपने देखा होगा यू ऑलवेज वेन एवर यू ड्राइविंग यू नीड टू, आपके करीब से अगर कोई ऐसी गाड़ी गुजर रही हो जिसमें से काला सा धुआं निकल रहा हो, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट ट्राई टू गेट टूवर्ड्स दैट कार, यू विल ट्राई टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दैट व्हीकल ऑब्वियसली। सो दिस इज अगेन हैजर्डस। आपको पता है कि वो चीज़ जब आप इनहेल करेंगे वो, तो आप सोचिए कि जब वो बहुत सारी गाड़ियाँ इस तरह से बुट आउट करती हैं ऑन द डेली बेसिस, तो हवा में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट्स हाउ वी हैव सीन इन लाहौर एज वेल एंड एवरीवेयर एज वेल। लाहौर की एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं। ठीक है ना, आपने देखा कि 450 तक टच किया, इसके ऊपर भी गया, मे बी आई हैव नो आइडिया, लेकिन एक बहुत हजार्डस वेज को हम बड़ी इजीली क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इम्प्रूव्ड गाड़ियाँ रोडों पे लाना शुरू कर दें और उसके लिए लेजिस्लेशन जो है वो हमारी अच्छी हो, तो वी कैन अचीव दिस थिंग्स। कूलर आवर में जो है वो यूजुअली आपको जो है ना वो करवाने चाहिए, फ्यूल अप करवाना चाहिए अपनी गाड़ी को, क्योंकि फिर ये फ्यूम्स जो है वो हीट अप होते हैं और दे प्रोड्यूस ओजोन एंड दे गो डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर। जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ज़रा कम से कम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, आप उसमें लो VOC कंपाउंड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, गैस पावर्ड यार्ड इक्विपमेंट, आप उनसे ज़रा कम से कम जितनी आप एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी आप इस्तेमाल तो कर लेते हैं किसी न किसी पर्पज के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इमिट्स आउट सो मच कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड इनटू द एटमॉस्फेयर।
ठीक है। सो आप उसकी जगह जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या हाइब्रिड चीज़ों का यूज भी किया जा सकता है। सो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ द डिस्कशन, लेकिन हम यहाँ पे इसको एंड नहीं करेंगे। हम यहाँ से आपसे क्वेश्चन जनरेट करके देखते हैं कि आप इस चार्ट को या इस लेवल को, जो आपकी 10 एसेंशियल सर्विसेज हैं, आप किस तरीके से किसी भी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ कि आप किसी भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो इन सर्विसेज के साथ लिंक करके तो आप वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले इफ यू सी दैट, फॉलो माई कर्सर, मॉनिटर हेल्थ। ठीक है, आप कैसे मॉनिटर करते हैं उस हेल्थ प्रॉब्लम को? मॉनिटर हेल्थ का क्या मतलब है? उस हेल्थ प्रॉब्लम को आपने कैसे मॉनिटर करना है आप देखेंगे। देन यू डायग्नोज एंड यू इन्वेस्टिगेट। आप देखते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम रियली इज दैट द प्रॉब्लम और उसका लेवल क्या है। आप उसकी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आप ये देखते हैं कि हाँ जी ये मसला जो है वो कितने लेवल का है। सो यू इन्फॉर्म, यू एजुकेट, you empower. Then you mobilize your कम्युनिटी पार्टनरशिप्स। इसको क्या कहते हैं कि मोबिलाइज में आप देखेंगे शेकिंग हैंड बनता है, यानी कि आप लोगों को इन्फॉर्म करने के बाद, एजुकेट करने के बाद, एम्पावर करने के बाद उस कम्युनिटी को मोबिलाइज भी करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करें और कौन किस लेवल पे आप इस मसले को हल करने में हेल्प कर सकता है, आप उसको करें। देन यू डेवलप पॉलिसीज, ठीक है, यू इन्फोर्स लॉज, यू लिंक द सर्विसेज, ठीक है, and you assure the competence of workforce and you evaluate the thing in the last। तो इस तरह की साइकिल्स आप अभी काफी देखेंगे, आपने देखी भी होंगी। यूएसएड मिसाल, बात ये होती है कि यूएसएड जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच इज वर्किंग ऑन ऑन द डिफरेंट टास्क। दुनिया में जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो उनके टास्क इन्होंने अपने बनाए हुए हैं, वो उसके ऊपर काम करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी एसेंशियल, ये थोड़ा सा ब्रॉडर कह लें कि आपके कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि आपको फ्यूचर में जो है ये अच्छे से काम आए और आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये तमाम स्टेप्स यूज करते हुए आप इजीली उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप इससे निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं हेलमेट यूज, हेलमेट यूज जो है उससे आई एम थिंकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट मोबिलाइज कम्युनिकेशन पार्टनरशिप। हाँ, वो भी आप ठीक कह रहे हो, कम्युनिटी पार्टनरशिप के लिए जो यूएसएड कर रहा होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी आप इस वाले साइकिल को सोचो, बिकॉज इसमें आपने देखा कि 3 मेन फैक्टर्स हैं। असेसमेंट जो ब्लैक पे लिखा हुआ है, ब्लैक सर्कल जो हुआ है, आप वो देखो। आप जनरल बात कर, हम एक जनरल टॉक कर रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को हमने कैसे असेस करना है। किसी प्रॉब्लम को असेस करने के लिए यू मॉनिटर दैट प्रॉब्लम, यू डायग्नोज दैट प्रॉब्लम, ठीक है। देन यू इन्फॉर्म, यू मोबिलाइज, यू डेवलप पॉलिसी। यहाँ तक की बात जो है ये आपकी पॉलिसी डेवलपमेंट पे आती है। मैं भी आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छी, फिर आपको समझ आ जाएगा। और फिर आप लॉज बनाते हैं और फिर उन सर्विसेज को लिंक करते हैं। अब जैसे मैंने बात शुरू की थी कि आप हेलमेट यूज की बात करें, आपने पहले देखा कि आपके लाहौर शहर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। फिर आपने देखा कि उसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं वो मोटर बाइक्स इस्तेमाल करने वाले, फॉर एग्जाम्पल आपने वो देखा। जब आपने वो चीज़ें देखी तो आपको नज़र आया कि अब हमने उस हेल्थ सिस्टम को, आरटीए होने वाले नंबर्स को डिफरेंट हॉस्पिटल से हमने लिंक अप कर लिया, हमें पता चल गया कि ये मसला है। अच्छा, फिर आपने जब उसको डायग्नोज किया, आपने इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि बहुत से लोग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे थे। बहुत से लोग जो है वो आप कह लें कि वो हेलमेट्स नहीं पहने हुए थे। ठीक है, आपको ये सब बातें पता चली, आपने असेस कर लिया कि प्रॉब्लम है। फिर आपने इन्फॉर्म किया, एजुकेट किया लोगों को। थ्रू हाउ कैन यू इन्फॉर्म द पीपल?
आप लोगों को इन्फॉर्म कैसे कैसे कर सकते हैं इन दिस सिनेरियो, जिस सिनेरियो पे मैं बात करूँ, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, थ्रू प्रिंट मीडिया, ठीक है। तो ये सब आपके सोर्सेज हो सकते हैं कि आप उन्हें कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप उन्हें कैसे एजुकेट कर सकते हैं, आप उन्हें कैसे इम्पावर कर सकते हैं, ठीक है। आप उन्हें उसके मसाइल समझाएंगे तो दे विल स्टार्ट थिंकिंग। आपने पढ़ा होगा हेल्थ एजुकेशन में देयर आर सर्टेन लेवल्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले तो उसका सेंसिटाइज होना, अवेयर होना जरूरी है किसी भी चीज पे। जब तक वो सेंसिटाइज नहीं है, अवेयर नहीं है, वो किसी भी चीज, किसी भी एक्ट को आपके सुनेगा नहीं, वो फॉलो नहीं करेगा। और जब तक आप उसको उसके फायदे नहीं कराएंगे, और फिर वो उसका ट्रायल करेगा, जब उसको उसका ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल मिलेगा, तो वो डेफिनेटली उस आपके बताए हुए काम पे चलना शुरू कर देगा। यानी वो क्या बन जाएगा, वो उसकी एक सोशल नीड बन जाएगा, जिस बात को पहले वो एक जरूरत नहीं समझता था। तो दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन एंड दिस इज द पावर थ्रू विच यू कैन अचीव सो मेनी गोल्स, ठीक है ना। फिर आप वो जो कम्युनिटी पार्टनरशिप से उनको डेवलप करते हैं कि जनाब आप जो है यहाँ पे आने वाले लोगों को जो है वो एजुकेट करें, उनको जो है समझाएं कि वो ये सब कुछ करें। फिर आप डेवलप करते हैं, आपने पॉलिसी डेवलप कर दी कि जनाब अब जो बंदा नहीं पहनेगा हेलमेट while he is riding on a bike, तो we will definitely charge him penalties, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे पेनल्टीज? पेनल्टीज क्या होती है? ठीक है, उसके चालान्स किए जाएंगे, ठीक है ना। जब उसको पैसे देने पड़ेंगे, फाइन देना पड़ेगा, तो फिर तो वो थोड़ा सा सोचेगा ना कि चलो यार मैं फाइन ना दूं, मैं कम से कम हेलमेट ही पहन लूं, ठीक है। आप लोगों को देना पड़ता फाइन, so then obviously once the penalties are there, then you link the services। आप लिंक करते हैं कि ठीक है जनाब, जितने लोगों ने जो है वो नहीं एक दूसरे को सपोर्ट किया या सिस्टम के ऊपर जो है वो नहीं उन्होंने वो किया, तो ऑब्वियसली हम उनके साथ जो है वो मजीद, तो फिर यहाँ पे पुलिस का जो है वो कांस्टेबल्स का जो है वो इंटरेक्शन यहाँ पे समझ आता है। फिर ये सब चीज़ें आप यू लिंक द सर्विसेज, कैसे आप लिंक करते हैं। और फिर आपने कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स जो है आपने डेवलप करनी होती है। वो जो लोग वहाँ खड़े हुए हैं, आपने उनको एजुकेट करना होता है, उनको ट्रेन करना होता है फॉर दैट पर्पस। एंड देन फाइनल यू रिजल्ट्स, यू इवेलुएट योर रिजल्ट्स। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ग्राफ बना हुआ है विच शोज यू दैट आपने लोगों को हेलमेट्स बनाने शुरू करे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने उनसे लॉज और रेगुलेशंस की पाबंदी शुरू कराई, तो आपके जो एरिया है उसके अंदर क्या हो गया, आरटीएस होने कम हो गए। दिस इज हाउ यू टैकल अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो दिस इज these आर द पार्ट्स ऑफ एश्योरेंस, enforcement of the laws, ठीक है, लिंकिंग ऑफ द सर्विसेज एंड अश्योर कॉम्पिटेंस या कॉम्पिटेंस वर्कफोर्स। बिलीव कीजिए, आपसे अगर कोई भी सवाल किसी हेल्थ प्रॉब्लम के हवाले से किया जाता है और उसमें आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करके बेसिक 10 बातें जो है इनके ऊपर चलती हैं, और उसमें असेसमेंट, पॉलिसी डेवलपमेंट और एश्योरेंस के ऊपर आप बात करते हैं, तो यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ सो मेनी थिंग्स। इज एवरीथिंग क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हमने 10 एसेंशियल सर्विसेज जो एनवायरमेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, हाउ डू यू टैकल देम, हाउ डू यू सी देम एंड हाउ डू यू मेक सम सॉल्यूशंस टू दैट।
तो ये हमारी लास्ट स्लाइड अब स्टार्ट होने लगी है। आपने तमाम तर चीज़ें इसमें देखी हैं, जितनी भी चीज़ें अभी तक इम्पैक्ट जो हमारी इन्वायरमेंट और हेल्थ के ऊपर बना रही थी, हमने उनको डिटेल में देखा। एयर पोल्यूशन देखा, वाटर को देखा, इनडायरेक्ट सैनिटेशन देखे, केमिकल्स देखे, रेडिएशन देखे, ह्यूमिडिटी, नॉइसेस देखे, ऑक्यूपेशनल रिस्क देखे। वो हमने थोड़े बहुत लाइटिंग के इफेक्ट में देखे, बट ऑक्यूपेशन का आपका एक पूरा अगेन एक वो अलग से चैप्टर मौजूद है। एंड यू सॉ क्लाइमेट चेंज इन वेरी डिटेल। सो एनी क्वेश्चंस अप टू नाउ? So let's see this. Please take a snapshot of this slide because this is important, and you can come across these type of questions in your examination point of view. ठीक है ना, ये चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, इस तरीके से पूछी जा सकती हैं कि गुड लाइटिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ लाइटिंग क्या हैं, इफेक्ट्स ऑफ पुअर लाइटिंग क्या हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन आप कैसे हासिल कर सकते हैं, स्मॉग क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, कौन से हेल्थ हैजर्ड्स एसोसिएटेड हैं पोल्यूशन के साथ, हाउ कैन यू डू दैट preventive measures against smog to control it. What are the 10 essential services of public health? Then we can ask you these things, right? So, in the last we will see, and I would like to tell you again that the term environmental sanitation has been a bit replaced with the environmental health, and this is the competition and this is the count of your every perspective thing. So thank you for everything, and the take home message is what? So, plant a tree and invest in gold. इसे कहा जाता है invest in green gold. अपने लेवल पे अपनी इन्वायरमेंट का ख्याल आपने रखना है, ठीक है ना जी। अपने अराउंड सराउंड से आप, इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, इफ यू स्टार्ट स्प्रेडिंग मैसेजेस अबाउट, तो हम छोटे छोटे लेवल पे काम करके भी वी कैन अचीव सो मेनी थिंग्स टुगेदर, वी कैन हैव मेनी थिंग्स टुगेदर, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। एक मेरा मैसेज है सबके लिए आजकल की सिचुएशन के हिसाब से कि अपने पैनिक को अपनी प्रेयर्स से रिप्लेस कीजिए और अपनी वरीज को अपनी वर्शिप से रिप्लेस कीजिए, सो दैट वुड बी द मे द टाइम बिकम्स इजियर फॉर ऑल ऑफ अस। और तमाम तर लोगों के लिए जो है वो अच्छी दुआएं कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, साफ रहिए, अपने आप को साफ रखिए, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखिए, अपने एनवायरनमेंट का ख्याल कीजिए, और जब भी कभी दुआ करें सबके लिए दुआ करें, और हमेशा दुआओं में याद रखें। और इट्स अ वेरी difficult time, but I would definitely like to say you all that God bless you all, stay home, take care, and Eid Mubarak to all of you from my side. And because this is the last working day for all of us. Thank you so much, Ali, and especially to all of you. Thank you, Aida. Thank you, Mariam. Thank you so much. हमेशा दुआ में याद रखिए. Please keep remember. In your prayers. हमेशा सबके लिए दुआ कीजिए, हमेशा सबके लिए मांगिए। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज़्यादा अमान में रखे, और मेरी तरफ से ढेरों दुआएं सभी के लिए। थैंक यू इतरत, ईद मुबारक टू यू टू। और मेरी एक इम्पॉर्टेंट दुआ ये सबके लिए कि ये जो डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं ये सबके लिए अच्छे से गुजर जाएं, ताकि हम जैसे नॉर्मली
अपने वर्क्स पे आते हैं, आप लोग आते हैं, सब चीज़ें फॉर एवरीवन, जो कुछ भी सब कुछ है वो सबके लिए अच्छा हो जाए जल्दी से जल्द। तो कीप ऑन डूइंग, अच्छा काम कीजिए, अच्छी दुआएं कीजिए, अच्छा वक्त गुजारिए, और प्लीज स्टे होम, डोंट बी पैनिक, तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मेरी तरफ से बहुत बहुत सबको सलाम, सबको दुआएं, और I would like to wait for the next 5 to 7 minutes, and I would definitely welcome for any related questions. I do have some almost 10 to 9 minutes left for the next lecture, before the beginning of the next lecture. तो आप लोगों से जो भी मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं, whenever you will open your books, आप अपनी बुक्स को खोलेंगे, then you will get some idea that we have been through all these important points, and you just need a linking of that book, and you will be able to compile it again in a very good manner. After Eid, I will definitely go with maternal and child health care. In that lecture, I would like to sum up that. मैं चाहूँगी कि मैं उसको सम अप करूँ उस लेक्चर को आपके लिए, और हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करें एज फार एज योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। तो ईद के बाद जो है जो लेक्चर्स होने हैं, आफ्टर ईद जो है, we will begin with MCH, the important points. As far as exams are concerned. And then after Eid, you will be having your revision lectures probably. And in those lectures, everyone will come with you and will talk to you from the department regarding the revision of that topic is concerned. ठीक है ना? तो ऐसा फिर आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा कि आपको रिवीजन का एक अच्छा टाइम मिल जाएगा। उस दौरान अपनी बुक्स को यू जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, आप देखते रहिए, जो चीज़ें इशूज बने उनको हाईलाइट कीजिए, उन क्वेश्चंस को पूछिए ड्यूरिंग द लेक्चर्स, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें जो है वो yes, of course, because most of the grand topics we also have done, हम सारा कुछ इम्पोर्टेंटली जो है वो कर चुके हैं, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई होंगी। सो डॉक्टर उस्मान विल डेफिनेटली डिस्कस विद यू ऑल, एंड ही विल गिव यू द मेन आइडिया अबाउट हाउ मच वी हैव डन एंड हाउ मच वी हैव लेफ्ट। लेकिन हम कुछ चाहेंगे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उसकी जो रिविजन्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करें, और जैसा हमें प्रोफेसर साहब के ऑर्डर्स आएंगे हम उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने लेक्चर्स को मॉडिफाई करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने लेक्चर्स को लेंथन या शॉर्टन करते हैं एज ऑर्डर्स एज अवेलेबल। तो जैसे जैसे हम मिलते जाएंगे हम उस हिसाब से जो है वो आप लोगों को अपडेट करते जाएंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर टू ऑल? Okay, thank you. So I'm just waiting for your next speaker. As soon as he or she comes, and then we will discuss it.